Good morning to all students. Students, in this video, I will explain about chapter number 17 of grammar book. The title of this chapter is The Perfect Tense. Now, look at here some of the sentences given in your textbook. First of all, concentrate on that. I have tried learning pottery. Rosie had made vegetable curry. Kunal will have finished his chores. Okay, now these are the three sentences given. Now all these highlighted word have, had made, will have finished, all are called perfect tense words. Okay, now look at here. The verbs in the bold are in the present perfect tense. We use the past participle form of the verb to form the perfect tense. First of all, as we know that what is the structure of simple present perfect tense? Okay, present perfect tense structure, that subject plus have has plus verb in a third form, means past participle form of the verb, that we call in the short PPT form of the verb, right? Now look at here, the present perfect tense, where we are using present perfect tense and some of the examples. We use the present perfect tense to refer to an action or event in the past that has just been completed and is connected to the present. तो स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब हम यूज़ करते हैं? जैसे कि कोई भी एक्शन और कोई भी हमारी लाइफ की इवेंट्स जो पास्ट में जस्ट स्टार्ट हुई है और जस्ट कंप्लीटेड एंड इज कनेक्टेड टू द प्रेजेंट. ठीक है, पास्ट में कोई भी एक्शन स्टार्ट हुई थी और अभी ही वो एक्शन कंप्लीट हुई है, रिसेंटली कंप्लीट हुई है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है, ऐसी मैटर दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं. When we use the present perfect tense, we are more concerned with what is happening at present as a result of a past action than about the past action itself. ठीक है, तो जैसे कि कोई पास्ट में एक्शन स्टार्ट हुई है और रिसेंटली ही उसका कंप्लीशन हुआ है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है, ऐसे कोई भी सिचुएशन या इवेंट्स या एक्शन दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, यानी उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्तमान काल. ठीक है. नाउ लुक एट हियर, वन एग्जांपल इज गिवन. Zainab has sold many handcrafted boxes. As you know students that the structure of present perfect tense is, first of all we have to write subject. Here Zainab is the name of a boy, so that is a subject. Then after, have and has compulsory in present perfect tense. Okay, so here the third person singular is there, that's why has is written. Okay, and with a plural forms and with I, you, we, ये सभी के साथ हम have का यूज़ करते हैं, ये तो आपको पता ही है. और इधर सेल का जो थर्ड फॉर्म है वो यूज़ हुआ है, दैट वी कॉल पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी पीपीटी. इन शॉर्ट V3 का मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो इधर सेल का हो गया सोल्ड एंड देन आफ्टर ऑब्जेक्ट मेनी handcrafted boxes. Look at here another example. We have covered a great distance. Here the subject is in plural form, that's why here we have to put have. If the subject is in plural form, there we have to compulsory write have. And then PPT means past participle form of the word. इधर जो मेन वर्ब है वो है कवर, बट उसका V3 फॉर्म क्या होता है? कवर्ड अ ग्रेट डिस्टेंस. ओके, तो इधर ये जो एक्शन है मीन्स डिस्टेंस कवर करने की, वो पास्ट में शुरू हुई थी और रिसेंटली ही
वो कंप्लीट हो गई है और उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है। तो ऐसे सेंटेंसेस में जहाँ पे भी आप देखो सब्जेक्ट्स के बाद तुरंत हैज़ और हैव का यूज़ किया होता है और वर्ब का 3 फॉर्म लगाया होता है, वो सभी सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंसेस बोल सकते हैं। तो अब दूसरी कौन सी जगह पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं? वी यूज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट। ओके, तो अब हमने आगे का यूज़ देख लिया कि जैसे पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुई है और रिसेंटली ही कंप्लीट हुई है बट उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ भी है, ऐसे एक्शन को भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में मेंशन कर सकते हैं। अब दूसरा, वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट। ठीक है, तो कोई भी एक्शन या इवेंट पास्ट में स्टार्ट हुई है एंड कंटिन्यूज इन द प्रेजेंट एंड स्टिल इट इज कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम, so that type of action also mentioned in this tense. For example, we have lived in the city for 10 years. ठीक है, तो इधर आप देख सकते हो कि 10 years से we have lived, हम ये सिटी में लास्ट 10 years से रहते हैं। तो जो हमारी एक्शन रहने की है कोई भी पर्टिकुलर सिटी में, वो स्टार्ट कब हुई थी? हमारे पास्ट टाइम में। अब स्टिल कंटिन्यू है, तो हम प्रेजेंट में भी वही सिटी में रहते हैं। जैसे कि आप मोरबी में रहते हो तो 5 साल से या 10 ईयर्स से आप रहते हो, तो आप ऐसा भी सेंटेंसेस बना सकते हो कि आई हैव लिव्ड इन मोरबी फॉर 5 years। ठीक है, तो आपकी जो एक्शन है मोरबी में रहने की वो पास्ट टाइम में शुरू हुई थी बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अभी भी आप मोरबी में ही रहते हो। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्शन हमें दिखानी है वहाँ पे भी हम ये टेंस का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट एग्जांपल, अली एंड आई हैव बीन फ्रेंड्स सिंस चाइल्डहुड। ठीक है, तो इधर चाइल्डहुड से दोनों फ्रेंड है, तो जो एक्शन उनकी मीन्स वो फ्रेंड्स थे, उनके पास्ट टाइम से उनकी फ्रेंडशिप स्टार्ट हुई बट स्टिल इट इज़ कंटिन्यू इन द प्रेजेंट टाइम। ठीक है, तो ऐसी मैटर्स दिखाने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करते हैं? द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, नाउ लुक एट हियर, वी ऑल्सो यूज इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट इज नॉट येट ओवर। ओके, कोई हमारी ऐसी एक्शन है तो वो एक्शन परफॉर्म हुई है ड्यूरिंग अ पीरियड दैट इज नॉट येट ओवर, स्टिल वो कंप्लीट नहीं हुई है, तो ऐसी मैटर दिखाने के लिए भी हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि वी हैव ट्राइड अ न्यू पैकेज दिस मंथ, हमने न्यू पैकेज ट्राई किया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उन्होंने नया पैकेज स्टार्ट किया है ये मंथ से, तो अभी ये एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ठीक है, सी द नेक्स्ट, आई हैव एक्सरसाइज्ड 3 times दिस वीक, तो ये वीक में मैंने 3 बार एक्सरसाइज किया है, तो अभी पे यहाँ पे एक्शन परफॉर्म ड्यूरिंग अ पीरियड दैट इज स्टिल नॉट मीन्स नॉट येट ओवर मीन्स कंप्लीटेड। ओके, तो ऐसी मैटर्स के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। We also use it to talk about an action that is repeated during an unspecified period between the past and present। तो कोई भी हमारी ऐसी एक्शन है जो रिपीट हुई है, मीन्स बहुत बार हमने किया है, पास्ट में भी किया है और प्रेजेंट में भी किया है, तो हमारा ये रिपीटेड एक्शंस की कोई भी मैटर्स दिखाने के लिए भी हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि सीधा एग्जाम्पल, आलिया एंड अजय हैव विजिटेड मुंबई मैनी टाइम्स, तो उन्होंने पास्ट टाइम में भी मुंबई की विजिट लिया था और प्रेजेंट टाइम्स में भी बहुत बार लिया है, तो यहाँ पे जो मुंबई की उन लोगों ने विजिट ली है वो एक्शन रिपीटेडली दिखाई गई है। ठीक है, यासिर हैज़ प्लेड हॉकी विद द स्कूल टीम फॉर ईयर्स, तो यासिर नाम का लड़का है, वो हॉकी की गेम है वो स्कूल के टीम के साथ बहुत बार उसने प्ले किया है, तो वो एक्शन उसने पास्ट में भी किया है, प्रेजेंट में भी वो कर रहा है, तो
ऐसे कोई भी एक्शंस दिखाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ लुक एट द अनदर इम्पोर्टेंट डिटेल, वी यूज इट टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट विच इज इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्शन है जो पास्ट में हुई थी विच इज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट जब हम वो कोई एक्शन के बारे में हम मेंशन करते हैं या तो बोलते हैं तब भी उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो दिखाने के लिए भी हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। लुक एट हियर, रूही हैज़ प्रिपेयर्ड वेल फॉर द डिबेट। ओके, तो जब ये सेंटेंस बोलते हैं तब उसकी जो एक्शन है वो पास्ट में हुई थी, ठीक है, उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था, बट विच इज़ इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम ये सेंटेंस बोलते हैं तब उसका इम्पोर्टेंस भी दिखाया जाता है, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। सो रूही हैज़ प्रिपेयर्ड वेल फॉर द डिबेट एंड द अनदर एग्जाम्पल, बोरिस हैज़ स्टडीड हार्ड फॉर द टेस्ट। तो ये दोनों सेंटेंसेस में स्टूडेंट ये बताया है कि पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स दिया है उन लोगों की एक्शन हैपन हुई थी पास्ट टाइम में एंड विच इज स्टिल इम्पोर्टेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट उसका महत्व दिखाया गया है ये सेंटेंस बोलने के टाइम पे, ठीक है। तो ऐसी एक्शंस भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में उसका यूज़ करके दिखा सकते हैं। वी ऑल्सो यूज़ इट टू डिस्क्राइब अ स्टेट, स्टेट यानी जो परिस्थिति है वो दिखाने के लिए वो भी हम यहाँ पे ये टेंस का यूज़ करके दिखा सकते हैं। आई हैव बीन पेशेंट, ठीक है, परिस्थिति के अनुसार डिफरेंट सेंटेंसेस हम बनाते हैं कि आई हैव बीन पेशेंट, शी हैज़ अंडरस्टूड द लेसन, ठीक है। तो ऐसी कोई भी स्टेट यानी परिस्थिति दिखाने के लिए भी हम ये टेंस का यूज़ करते हैं। तो ये हुई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बात किया। एंड नाउ यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस V3 यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है। नाउ सेकेंड टेंस दैट इज पास्ट टेंस। तो अब पास्ट टेंस में भी परफेक्ट टेंस में क्या हमें ध्यान रखना है, ठीक है। लुक एट हियर, द पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जो हमारा टाइटल है वो है परफेक्ट टेंस का, तो उसमें तीनों टेंसेस के परफेक्ट टेंस पे हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, द पास्ट परफेक्ट टेंस, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट, ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट यानी पूर्ण उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल कहते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में उसका सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है, जैसे कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर देखा था। तो इसमें सिर्फ चेंज क्या है, जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव लगाते थे प्लस V3 लगाते थे, तो यहाँ पे हैज़ हैव की जगह पे सिर्फ हमें पास्ट टेंस है इसलिए हमें सिर्फ हैड लगाना पड़ेगा। तो उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैड एंड प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट हियर, तो ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसका यूज़ हम कब करते हैं और कौन सी एक्शंस के लिए करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है, वी यूज द पास्ट परफेक्ट टेंस टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपन बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। तो जैसे कि हमारे पास्ट टाइम में कोई एक्शन हैपन हुआ, उससे पहले कोई दूसरी एक्शन बन जाती है, तो ऐसी एक्शन दिखाने के लिए हम ये टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। लुक एट हियर, आई वॉच टीवी आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। आई वॉच टीवी आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। मैं टीवी देखूंगा बट कब, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क। पहले कौन सी क्रिया मैं करूँगा, मीन्स कौन सी एक्शन, आई हैव
I had finished my homework. Okay, I watched TV after I had finished my homework. तो मेरा जब होमवर्क कंप्लीट होगा उसके बाद ही मैं टीवी देखूंगा. ठीक है. Look at the another. She went home after she had completed her work. तो यहाँ पे एक एक्शन है वो हैपन हुई है बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. Look at here. In the example, it is clear that one action was completed before another action began. Okay. She went home after she had completed her work. ठीक है. तो आप यहाँ देख सकते हो we use the past perfect tense to indicate the earlier action. We use time words or phrases such as already, by, then, okay, until, before, after and so on with verbs in the past perfect tense. यहाँ पे आपने देखा दोनों sentences में after का use हुआ है. ठीक है. तो ये सभी हिंट वर्ड्स हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के लिए. तो यहाँ पे एक्शंस हैपन बिफोर अनदर एक्शंस इन द पास्ट. तो इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. नाउ आवर थर्ड टेंस दैट इज फ्यूचर टेंस. और इसमें भी हमें यहाँ पे क्या फोकस करना है द फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी पूर्ण भविष्य का. तो इसमें कौन से एक्शन हम मेंशन कर सकते हैं. लुक एट हियर. वी यूज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस एक्शंस विच विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. ठीक है. अभी वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है बट विच विल बी कंप्लीटेड. अभी तक वो एक्शन कंप्लीट नहीं हुई है बट इन अ सर्टेन और यू कैन से बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर दैट एक्शन विल बी कंप्लीटेड. तो नज़दीक के फ्यूचर में, ठीक है, कोई सर्टेन टाइम पीरियड में वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगी बट अभी तक हुई नहीं है. तो हियर ऑल्सो एग्जाम्पल्स गिवन इन योर बुक. बाय दिस टाइम नेक्स्ट मंथ I will have submitted my final observations. अभी तक उसने सबमिट नहीं किया है फाइनल ऑब्जर्वेशन बट I will have submitted my final observation by this time next month. अभी तक उसने कंप्लीट नहीं किया है बट वो नेक्स्ट मंथ by this time मीन्स सर्टेन टाइम पीरियड मीन्स नेक्स्ट मंथ इधर टाइम दिखाया है कि नेक्स्ट मंथ वो अपना जो वर्क है ऑब्जर्वेशन फाइनल ऑब्जर्वेशन सबमिट करने का वो पूरा कर देगा. अभी तक यहाँ उसका एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है. ठीक है. बट इट विल कंप्लीट इन अ नियरेस्ट फ्यूचर. द हॉलीडेज विल हैव बिगन बाय 7 मई. अभी तक हॉलीडेज स्टार्ट नहीं हुआ है बट वो कब स्टार्ट होगा बाय 7 मई. ठीक है. तो यहाँ पे हॉलीडेज का जो एक्शन है मीन्स वो स्टार्ट नहीं हुआ है बट हो जाएगा. कब से हो जाएगा बाय 7 मई. द वर्ड्स ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर आर यूज्ड टू रिफर टू एक्शन दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर. सो दीज आर द हिंट वर्ड्स दैट इज गिवन इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस दैट ऑलरेडी, जस्ट, बिफोर. ये सभी वर्ड्स क्या मेंशन करते हैं कि एक्शन है that will be completed by a certain time in the future. ये सभी वर्ड्स हिंट देते हैं हमें कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है वो एक्शन बट नियरेस्ट फ्यूचर में और यू कैन से बाय अ सर्टेन टाइम इन द फ्यूचर इट विल कंप्लीट. ठीक है. तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल्स हमने देखा. ठीक है. तो इधर पे भी हमको पता चल गया है कि हमें यहाँ पे क्या फॉर्मेट ध्यान में रखना है. सब्जेक्ट प्लस शेल विल तो लगाना ही है. उसके साथ हमें लिखना भी है हैव, हैज़ एंड प्लस V3. ठीक है. तो ये उसका फॉर्मेट है. नाउ लुक एट हियर वन इम्पोर्टेंट टेबल इज गिवन इन योर बुक. ठीक है. तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स. आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. ठीक है. लुक एट हियर.
usage, tense, form and examples. Positive sentences. If in these all three tenses, if the positive sentences are, which structure we have to keep in our mind? Present perfect tense में subject plus has have plus past participle यानी V3 forms of the verb. ठीक है, तो यहाँ पे has spoken, has slept, ओके ऐसा लिखा है. अब पास्ट परफेक्ट टेंस है तो उसमें क्या चेंज करना है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. हेड स्पोकन, हेड स्लेप्ट. ठीक है, V3 तो सभी में ही हमें लगाना ही है. अगर कोई वर्ब का V3 आपको आता नहीं है तो बाय हार्ट कर लेना है, वो जो वर्ब का चार्ट है वो भी. ठीक है, इसलिए आपको ये टेंसेस में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे, क्योंकि हर एक वर्ब का हमें V3 फॉर्म आना ही चाहिए. अब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसका फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट प्लस शैल या तो विल और उसके साथ कंपलसरी हैव लगाना है और प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इसमें भी विल हैव स्पोकन, विल हैव स्लेप्ट. ठीक है, तो ये तीनों टेंसेस में आपने देखा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ हैज़ का यूज़ करना है, V3 तो रहेगा ही. फिर परफेक्ट में हमें सिर्फ हैड लगाना है और फ्यूचर में हमें विल या सेल का यूज़ करके हैव लगा के V3 लगाना है. ठीक है, ओके. नाउ लुक एट हियर नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव सेंटेंसेस दिया है तो उसका फॉर्मेट किस तरह से हमें तीनों टेंस में ध्यान रखना है. तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव, सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव लगाना कंपलसरी है. ठीक है, तो उसके बाद कंपलसरी हमें नॉट का यूज़ करना पड़ेगा प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हैज़ नॉट रीड, हैव नॉट वॉच. सेम वे पास्ट परफेक्ट में भी हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगाते हैं और हेड के बाद हमें नॉट रखना कंपलसरी है, तभी जाके सेंटेंस नेगेटिव में चेंज होगा. ठीक है, और बाद में पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि हैड नॉट रीड, हैड नॉट वॉच. और सेम वे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी सब्जेक्ट्स के बाद हम शैल विल का यूज़ करते हैं, उसके बाद हमें विल का यूज़ करके नॉट कंपलसरी लगाना है और बाद में ही हैव लिखना है प्लस V3. ठीक है, विल नॉट हैव रीड, विल नॉट हैव वॉच. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है. नाउ यस नो क्वेश्चन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है? हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि पहले हैज़ हैव हमें लिखना है सब्जेक्ट्स के पहले, बाद में सब्जेक्ट्स. हैज़ ही पेंटेड द पिक्चर एंड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क साइन. सेम वे पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें सब्जेक्ट से आगे पहले हमें हैड यूज़ करना है, बाद में सब्जेक्ट्स एंड देन V3 वर्ब फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल, हैड ही पेंटेड द पिक्चर. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी हमें क्या करना है? विल है वो आगे रख देना है प्लस सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैव लिखना है एंड देन आफ्टर V3 मीन्स वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे कि विल ही हैव पेंटेड अ पिक्चर. तो आप तीनों सेंटेंसेस कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही लिटिल बिट चेंजेस हैं. ठीक है, वो हमें ध्यान में रखना है. अब क्वेश्चंस बिगिनिंग विथ व्हाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हिच, हाउ एंड सो ऑन. अब ऐसे कोई भी क्वेश्चंस होते हैं उसमें हमें क्या फॉर्मेट ध्यान में रखना है? तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले डाल देना है, उसके बाद हैज़ हैव का यूज़ करना है एंड देन सब्जेक्ट्स एंड देन V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि व्हाट हैव दे डन, व्हाट हैड. ठीक है, तो इधर व्हाट पहले लिख दिया, बाद में हैव एंड देन आफ्टर सब्जेक्ट एंड देन V3 फॉर्म. तो सेम वे पास्ट परफेक्ट में ही ऐसे ही होगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखना है प्लस हेड करना है प्लस सब्जेक्ट एंड देन आफ्टर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. जैसे कि व्हाट हैड दे डन. ठीक है, और लास्ट में साइन तो क्वेश्चन मार्क की ही होती है, वो तो हम सबको पता है. अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्वेश्चन वर्ड
प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म, ठीक है। जैसे कि व्हाट विल दे हैव डन, ठीक है। तो इसी तरह से ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको ध्यान से 2 बार पढ़ लेना है, ठीक है, तब आपको सब रूल्स याद रह जाएंगे। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द टेक्सचुअल एक्सरसाइज नंबर A. Complete these sentences in the present perfect tense using the verbs in the brackets. अब ब्रैकेट में वर्ड दिया है, बट यहाँ पे लिखा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करके ही हमें वर्ब लिखना है, ठीक है। सी द फर्स्ट एग्जांपल, साहिल ब्लैंक इनटू ब्रैकेट चूज दिस शर्ट्स आरंट दे नाइस। तो मैंने यहाँ एक्सरसाइज में उसका फॉर्मेट भी लिखा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट क्या होता है। आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही पेंसिल से लिख देना है, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब भी ये रीड करो तब स्ट्रक्चर तुरंत ही आपके माइंड में आ जाए। जैसे कि सब्जेक्ट पहले लिखना है, प्लस उसके बाद हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स लिखना है, प्लस पीपीटी यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यू कैन से V3 ऑल्सो प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इधर साहिल सब्जेक्ट लिखा है, साहिल इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स वाई वी हैव टू राइट हैज़, और इधर चूज लिखा है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, चोजन, क्योंकि V3 चूज का क्या होता है, चोजन, ठीक है, चोजन। दिस शर्ट्स आरंट दे नाइस। नंबर 2, हियर आर योर स्पेक्टिकल्स, आई ब्लैंक इनटू ब्रैकेट फाइंड लिखा है देम। तो आई के साथ भूलना नहीं है, हमें हैव और हैज़ दोनों में से एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है, बट आई के साथ हम ऑलवेज हैव का यूज़ करते हैं, इसलिए हैव पहले लिखना है, और फाइंड का V3 क्या हो जाएगा, फाउंड, FOUND, फाउंड है। नंबर 3, माई मदर ब्लैंक इनटू ब्रैकेट लिखा है ड्राइव, ओके, ड्राइव हियर फ्रॉम हर ऑफिस। तो इधर मदर, माई मदर इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट हैज़, और व्हाट इज V3 ऑफ ड्राइव, ड्राइवन, DRIVEL। नंबर 4, मैनी पीपल ब्लैंक इनटू ब्रैकेट विजिट केरला दिस ईयर, okay, here many people is a plural subject, that's why here we have to write have, and visit का क्या हो जाएगा, visited, because V3 form of visit is visited, Kerala this year। Number 5, the baby elephant blank fall into the pit। Now here baby elephant is a singular subject, that's why here we have to write has, and what is V3 of fall, fallen, FALLEN। Number 6, the two presidents blank meet several times, here two presidents is a plural subject, that's why here we have to select have first, and what is V3 of meet, met, MET। तो इस तरह से सभी एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही करना है। लुक एट सेंटेंस नंबर 7, सुप्रिया ब्लैंक इनटू ब्रैकेट सिंग ऑल द सॉन्ग्स ऑन दिस CD। तो इधर सुप्रिया इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई हियर वी हैव टू राइट हैज, एंड V3 ऑफ सिंग इज संग, SUNG, ओके। सो हैज संग ऑल द सॉन्ग्स ऑन दिस CD। नंबर 8, द ऑयल वेल into bracket produce a million barrels। तो इधर oil well is a singular subject, that's why here we have to write first has, and V3 of produce is produced, ठीक है। तो इसी तरह से सभी फिलअप्स हमें ऐसे करनी है और उसका स्ट्रक्चर अच्छे से लर्न कर लेना है। नाउ exercise B and C both are oral practice exercise, but it is important, that's why I have written here। Look at here, see these sentences aloud in the negative form। अब ये सभी sentences का हमें नेगेटिव बनाना है। तो आप जानते हो कि नेगेटिव का हमने स्ट्रक्चर भी देख लिया है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट उसके बाद हैज़ और हैव आता है, और उसके बाद नॉट लगाने से पूरा सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाता है। वन एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया ही है। नंबर 2, वी हैव आंसर्ड हिज क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमें वी का वी ही रख देना है, हैव का हैव ही रख देना है, बट
बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर है कि हैव और हैज़ का यूज़ करने के बाद कंपलसरी हमें नॉट वर्ड ऐड करना है, ठीक है। और बाकी का सेंटेंसेस एज इट इज़ रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ आपको ये सेंटेंसेस में, सभी सेंटेंसेस में हैज़ और हैव के बाद सिर्फ नोट ऐड करना है, NOT, तब जाके सभी सेंटेंसेस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। लुक एट हियर, डोनी हैज़ ब्रोकन द वेज, डोनी हैज़ नॉट ब्रोकन द वेज। I have forgotten to bring the medicine. I have not forgotten to bring the medicine. Okay, it has been too hot this summer. It has not been too hot this summer. Karina has left your bag here. Karina has not left your bag here. So this way we can make negative sentences. Now look at the another exercise number C. Say these sentences aloud in the interrogative form. उसका भी स्ट्रक्चर हमने देख लिया है। जैसे कि कोई भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें चेंज करना है तो सबसे पहले हैज़ और हैव दिया हो सेंटेंसेस में तो सबसे पहले वो रख देना है और सेकेंड प्लेस पे सब्जेक्ट को रखना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है दोनों। पहला एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिया है, दूसरा हम देखते हैं। लिसा हैज़ गिवन अवे हर ओल्ड फर्नीचर। तो सबसे पहले ये जो हैज़ है उसको सबसे पहले आगे रख देना है, तो H कैपिटल हो जाएगा हैज़, और उसके बाद सेकेंड प्लेस पे सब्जेक्ट रखना है, यहाँ लिसा है। तो कैसे हो जाएगा, हैज़ लिसा गिवन अवे हर ओल्ड फर्नीचर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन मार्क के साइन करने का भूलना नहीं है, ठीक है। नाउ लुक एट हियर, You haven't told your friends yet. तो कैसे होगा, Haven't you told your friends yet? The Kumars have been away a long time. Have the Kumars been away a long time? We have reached the end of the road. Have we reached the end of the road? Tanya and Sanjay haven't started their project yet. Haven't Tanya and Sanjay started their project yet? तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। नाउ लुक एट हियर, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, ठीक है। तो ब्रैकेट में जो वर्ड दिया है बट ये हमें कौन से टेंस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो उसका स्ट्रक्चर भी आप लोगों को याद होना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सभी वर्ब के साथ जो ब्रैकेट वर्ड दिया है वो मेन वर्ब दिया है, बट उसको हमें चेंज किस में करना है, V3 में, और उसके पहले हेड लगाना भूलना नहीं है। Look at here, when Yash arrived home, his father blank into bracket written लिखा है already। तो दिस इज पास्ट परफेक्ट टेंस, इसलिए सबसे पहले हमें हेड लिखना है और रिटर्न का क्या हो जाएगा, V3 रिटर्न्ड। नंबर 2, गार्गी ब्लैंक into bracket study all the specifications before she finalized the design, ठीक है। तो इधर हेड हमें पहले लिखना पड़ेगा और स्टडी का V3 फॉर्म क्या होता है, स्टडीड, ठीक है। नंबर 3, बाय द टाइम द चीफ गेस्ट अराइव्ड द स्टूडेंट्स इनटू ब्रैकेट बिकम रेस्टलेस। तो इधर पे हमें लिखना पड़ेगा हैड बिकम, ठीक है। नंबर 4, आई इनटू ब्रैकेट थिंक ऑफ इट इवन बिफोर यू मेंशन इट। तो आई के साथ हैड, थिंक का V3 हो जाएगा थॉट। Number 5, before he planted the seeds, we ran into bracket prepare the ground। अब आप यहाँ ऐसी ब्लैंक्स में अगर आप भूल गए हेड लिखना सभी ब्लैंक में तो आपकी ब्लैंक रॉन्ग हो जाएगी, बिकॉज एज पर द स्ट्रक्चर, एज पर द रूल, इट इज़ कंपल्सरी टू पुट हेड बिफोर द V3 फॉर्म, ठीक है। तो वी रैन हैड, प्रिपेयर का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रिपेयर्ड। Number 6, just before Aditya entered the class, the teacher blank into bracket mark him absent। Had mark का V3 फॉर्म क्या हो जाएगा, marked, ठीक है। Now see number 7, I blank into bracket no
Varun for some time before she introduced Varuna for some time before she introduced her sister to me. ठीक है, तो इधर नो लिखा है तो आगे पहले हमें हैड लिखना पड़ेगा और व्हाट इज V3 known KNOWN. Number 8 he blank into bracket read the book already before he watched the film. had read का read ही रहेगा. ठीक है, तो इसी तरह से हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है. ठीक है, नाउ एक्सरसाइज नंबर ई. Complete these sentences with the negative past perfect tense forms of the words in the bracket. ठीक है, तो अब हमें ये सभी वर्ड्स को हमें नेगेटिव पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है. तो हमें पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, तो हेड के बाद तुरंत हमें क्या लिख देना है, नॉट. जैसे कि आई डिडंट बाय एनीथिंग एट द शॉप बिकॉज आई हैडंट टेकन एनी मनी विथ मी. तो इधर टेक है जो बेस फॉर्म वर्ब का दिया है, बट उसको भी हमें V3 में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, विनीत वॉज एक्साइटेड टू सी द फिल्म सिंस ब्लैंक इट बिफोर. तो इधर सी लिखा है तो सी का हो जाएगा V3, बट उसके पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, हैड नॉट सी. ठीक है, when I called रूपा she blank yet. ठीक है, when I called रूपा she hadn't, पहले हमें had not लिख देना है, had not, फिर हमें क्या लिखना पड़ेगा, leave. तो leave का V3 होता है left. This word is left, LEFT. Number 4 Maya missed the train since she blank the station on time. तो इधर है reach दिया है तो reach का V3 हो जाएगा reach, बट आगे क्या लिखना पड़ेगा, she had not reached. Okay, number 5 Renu wasn't ready to talk about the story in class because she blank it. तो इधर लिखा है read, तो read का read ही रहेगा, hadn't read हमें लिखना क्या पड़ेगा क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है, hadn't read. Then Pauline blank that the phone was off the hook. तो इधर had not, इधर जो वर्ड दिया है वो है नोटिस, तो नोटिस का हो जाएगा नोटिस्ड. देन सुशांत रिसीव्ड द पैकेज बट ही ब्लैंक इट. तो इधर लिखा है ओपन, तो ओपन का V3 हो जाएगा ओपनड, बट लिखना कैसे पड़ेगा, हैड नॉट ओपनड. ठीक है, नंबर 8 बेटी कुडंट गो रोलर स्केटिंग बिकॉज सी ब्लैंक हर शूज. ठीक है, तो इधर पे जो वर्ड है वो हमें ब्रिंग है, उसका V3 बनाना पड़ेगा ब्रॉट, तो शी हैडंट ब्रॉट हर शूज. ठीक है, तो इसी तरह से सभी फिलअप्स में हमें ये ध्यान रखना है. अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, वो है F. कंप्लीट दिस क्वेश्चंस विद द पास्ट परफेक्ट टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट. अब जो ब्रैकेट में वर्ड्स दिया है उसका हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करना है. देखो फर्स्ट एग्जांपल दिया है, ब्रैकेट वर्ड दिया है दे एंड क्लोज, तो हमें लिखना कैसे है, हैड दे क्लोज द शॉप्स बिकॉज ऑफ द स्ट्राइक्स, बिकॉज दिस ऑल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. ठीक है, तो इसी तरह से हमें हैड पहले रखना पड़ेगा, बाद में हमें सब्जेक्ट्स लिखना है. यहाँ पे सभी जगह सब्जेक्ट्स दिया है और ये सभी दिया है वर्ब, मेन वर्ब दिया है जिसको हमें V3 में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे हेड, देन सेकंड नंबर पे हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे. यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है पिंकी, फिर गो का V3 हो जाएगा गॉन आउट व्हेन यू कॉल्ड हर. तो इसी तरह से सबसे पहले हमें सभी में हेड रख देना है, बाद में सब्जेक्ट्स लिखना है, एंड देन आफ्टर वी हैव टू राइट V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो इधर पे भी फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, हेड, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट दिया है रोहित, आस्क का क्या हो जाएगा V3 आस्क्ड, फॉर द रिसिप्ट व्हेन ही बॉट इट. नंबर 4 हैड दे, इधर सब्जेक्ट दे है इसलिए हमने यहाँ दे लिखा है, और रीच का V3 हो जाएगा रीच्ड, ईडी लग जाएगा. द स्टेशन व्हेन देयर फ्रेंड्स अराइव. नंबर 5 हैड इधर पे जॉन, और लीव का हो जाएगा लीव्ड इन पुणे बिफोर ही मूव टू कोलकाता. Number 6 had
इधर पे सब्जेक्ट दिया है मीना और फाइंड इज अ मेन वर्ब, बट व्हाट इज V3 ऑफ फाइंड? फाउंड अ न्यू रूममेट बाय दैट टाइम। ठीक है, तो इसी तरह से ये एक्सरसाइज में भी हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का फॉर्मेट ध्यान में रखना है। नंबर 3, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सभी को स्ट्रक्चर मालूम ही है, सब्जेक्ट्स प्लस विल प्लस हैव प्लस V3 फॉर्म। ठीक है, लुक एट हियर, इन अ फ्यू इयर्स ही ब्लैंक कंप्लीट हिज स्कूलिंग। तो इधर सबसे पहले ही के बाद हम रखेंगे विल, ठीक है, और उसके बाद हमें कंपलसरी हैव रखना होता है एंड प्लस V3 कंप्लीट का हो जाएगा कंप्लीटेड। नंबर 2, their silver wedding anniversary is on 12th January. They into bracket B लिखा है married for 25 years। तो they के बाद हम will रखेंगे प्लस have रखेंगे और B का हो जाएगा B, V3 फॉर्म। नंबर 3, by the end of the year Mr. Roy blank into bracket turn 60। इधर पे मिस्टर रॉय विल हैव टर्न का हो जाएगा टर्न। ठीक है, नंबर 4, सी ब्लैंक इनटू ब्रैकेट वर्क एज डायरेक्टर ऑफ हेल्थ फॉर 8 years बाय दिस जून। नाउ यहाँ पे हमें विल ऐड करना पड़ेगा, फिर हैव ऐड करना पड़ेगा और वर्क का हो जाएगा वर्कड। आवर स्कूल ब्लैंक इनटू ब्रैकेट विन 10 matches in this season if we win this match too। Our school will have win का हो जाएगा won। ठीक है, नंबर 6, नीलांजन blank finish his tuition by 6 PM। तो will have तो हमें रख ही देना है सभी फिलअप्स में और जो भी वर्ब दिया है उसका V3 हो जाएगा। तो इधर फिनिश दिया है तो will have finished। नंबर 7, by next week Leslie blank make his final decision about the property। इधर will have और make का हो जाएगा made। ठीक है, नंबर 8, if all goes well we blank sign the agreement by the end of the month। इधर we will have sign का हो जाएगा sign। बहुत ही सिंपल है, सिर्फ हमें इसका स्ट्रक्चर अच्छे से याद रख लेना है सभी फिलअप्स का। नाउ दिस वन इज द लास्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। इधर पे सभी वर्ड्स हेल्प बॉक्स दे दिया है, सिर्फ आपको सिलेक्ट करना है कौन सा कहाँ पे आएगा। ठीक है, देखो इधर द फिल्म विल हैव स्टार्टेड बाय द टाइम वी रीच द थिएटर। धारा throngly for her presentation by this afternoon। तो इधर वो प्रेजेंटेशन का क्या कर रही होगी, प्रिपरेशन। तो इधर पे हमें सिलेक्ट करना है will have prepared। ठीक है, नंबर 3, the band their new album before the end of this month। तो इधर पे हमें लिखना पड़ेगा will have released। the band will have released their new album before the end of this month। Number 4, they blank their reservation in advance because it is hard to get tickets during the holidays। तो इधर पे हमें लिखना पड़ेगा will have made। Number 5, by the end of the month the paying guest blank with us for 2 years। तो इधर पे the correct option will be will have lived। ठीक है, Number 6, the government blank all the illegal buildings in this locality by the end of the year। तो इधर पे illegal buildings है उसका क्या होता है, will have demolished। Number 7, the film is a big hit another week in the theater and it पे यहाँ क्या आएगा will have broken। क्या लिखना पड़ेगा हमें, will have broken all records of collection। And last, the lesson is not very long। I इधर पे the उसका करेक्ट आंसर है will have finished studying it by Sunday evening। तो ये हमारी
इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज की ये चैप्टर के बारे में. आई होप स्टूडेंट वॉट एवर आई हैव डिस्कस्ड यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इट प्रॉपरली. ऑल द एक्सरसाइज विद द हेल्प ऑफ पेंसिल राइट in a textbook, and same time you have to learn structure of all tenses. Thank you. Have a nice day.